Assalamu alaikum. So here is your biology teacher Miss Aisha Khatir. Welcome to my channel. Today we will do paper number 1, low level biology, paper number 1, multiple choice questions, May June 2011, and this is your variant 2. Okay, let's start the paper. Okay, the first question is, the diagram shows a plant cell. Okay, what is the cell? Plant cell. Which feature is not found in animal cell? Okay. Now you should observe the diagram here. And check that what are basically structures which are labeled. Okay. So number 1 क्या है आपका? Number 1 है आपका cell wall. Number 2, what is this? This is cell membrane. Cell is somehow in flaccid condition, so cell membrane क्या हो गई है? Cell membrane shrink हो रही है. What is this? This is chloroplast. What is chloroplast? Chloroplast is the vacuole filled with chlorophyll. What is this? This is nucleus. And what is this? This is vacuole. So now tell me, which feature are not found in animal cell? Animal cell में क्या नहीं होता? Animal cell में आपकी cell wall नहीं होती, okay? और animal cell में chloroplast नहीं होती. So option number 1 and 3. So which option is the right option? Yes, option number B is the right option. Now question number 2. Below is a series of cell processes. Number 1, minerals entering root hair cell, glucose uptake by villus cell, water entering root hair cell. Which of these involve active transport? सबसे पहले तो you should have concept of active transport. आपको active transport का concept होना चाहिए. What is active transport? Active transport is the movement of substances from their low concentration to high concentration, and we can say against the concentration gradient. Against the concentration gradient. So in active transport, when substance move from their low concentration to their high concentration, they required energy. Okay. Now tell me, in your course you have studied that which of these processes required active transport. So the option is mineral ions entering root hair cell. Yes. Why mineral ions entering root hair cell required active transport? Because in soil mineral concentration is low, and in plant mineral concentration is high. But we observe that mineral go from their low concentration to high concentration, from soil to plant bodies, So this process required active transport. Glucose uptake by villus cell, yes, because this is the villus cell which has low glucose concentration, and this is your blood which has high glucose concentration. But where will be the movement of glucose from villus to blood is observed from its low to high concentration. So this process also required active transport. So 1 and 2. So which is the right option? Yes, option number A is the right option. The sentence describes the uptake of water by plant. Okay, water moves into the root hair of plant by osmosis. Osmosis, what is osmosis? Osmosis, इसके लिए सबसे पहले तो आपको concept होना चाहिए osmosis का. Osmosis is a type of passive transport. Now अभी हमने active transport discuss किया, तो passive transport क्या होगा? Passive transport इसका opposite है.
इसमें मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? नाउ मूवमेंट विल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन. नाउ वी से डाउन द कंसंट्रेशन gradient, down the concentration gradient. So osmosis is a type of passive transport. But what is the difference between diffusion and osmosis? And in osmosis you need semi-permeable and you can say partially permeable membrane. Permeable membrane, which is your cell membrane, Okay. So cell membrane play its role as semi or partially permeable membrane. So in osmosis, water moves from into the root hairs of a plant by osmosis through what? Through partially permeable membrane. Through partially permeable membrane, cell membrane dash a water potential gradient. क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया कि आपका ऑस्मोसिस टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट क्या होती है? डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? Option A, no. B, no. Option C, yes. Okay. Now question number 4. Magnesium is an essential element for. Magnesium किस चीज के लिए यूज होता है? Formation of cell wall, no. Formation of chlorophyll, yes. So magnesium is an ion which is required for formation of chlorophyll. प्रोटीन के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए नाइट्रोजन होता है. एंड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में भी मैग्नीशियम का कोई रोल नहीं होता. So option number B is the right option. Now MCQs number 5. A dish is filled with agar jelly containing starch. Okay, starch. याद रखिएगा starch. What is the starch? Starch is a type of polysaccharide. It's a type of polysaccharide. And what is polysaccharide? Polysaccharides are the complex sugars. Complex sugar. Okay. So starch is a polysaccharide. 4 holes are cut in the jelly and each hole is filled as shown. After 30 minutes, which hole will be surrounded by the largest area without a starch? Okay, now you should know about the concept of enzymes. For digestion process, enzymes are required. They are biological catalysts. So starch के digestion के लिए कौन सा enzyme responsible होता है? Amylase responsible होता है. अब amylase किस pH पे वर्क करता है? Amylase आपका नियर अबाउट न्यूट्रल या आपका बेसिक पीएच पे वर्क कर रहा होता है, नॉट ऑन एसिडिक पीएच. ओके. अमाइलेज सॉल्यूशन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन सॉल्यूशन. ये तो ऑप्शन ही गलत है आपका, क्योंकि पेप्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन डाइजेशन, नॉट फॉर स्टार्च. नाउ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी ऑप्शन गलत है. नाउ टेल मी, I told you that amylase work on neutral and basic pH, not on acidic pH. So what will be the answer? Yes, the answer will be A. Why? Because in B, what you are adding? You are adding hydrochloric acid, which make pH acidic, and this acidic pH is not favorable for amylase because amylase denature on this acidic pH. So option number A is the right option. That amylase will show its action here, and this area, this region A is surrounded by the largest area without starch. Okay. Now MCQs number 6. The graph shows the effect of carbon dioxide concentration on the rate of photosynthesis. Okay. This is the rate of photosynthesis. This is carbon dioxide gas concentration. What would be the limiting rate of photosynthesis at point X and Y? देखो point X and Y पे क्या हुआ? Point X पे when you are increasing the carbon dioxide concentration, the rate of photosynthesis is increasing, but after some time it become constant. तो यहाँ पर carbon dioxide X पे क्या हुआ? Carbon dioxide limiting factor है. But when you are increasing carbon dioxide concentration at Y, there will be no increase in rate of photosynthesis. So now यहाँ पर carbon dioxide limiting factor नहीं है. तो यहाँ पर कौन है limiting factor? यहाँ पर obviously light intensity is the limiting factor. Okay? Because carbon dioxide, ये C और D option तो गलत है, because on X carbon dioxide concentration is the limiting factor, not light intensity. So इस combo में अगर हम देखें तो carbon dioxide concentration Y पे नहीं. Carbon dioxide is not responsible for
होल्डिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नाउ, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ और फैक्टर है, तो दूसरा कॉम्बो हमें क्या मिल रहा है, लाइट इंटेंसिटी का मिल रहा है। तो दिस ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Now, the diagram shows a green shoot photosynthesizing under a glass jar. This was used as a control experiment in laboratory investigation. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कंट्रोल होता है जो आपका कंट्रोल इज अ टाइप। एक्सपेरिमेंट में हमारी दो टाइप होती है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक होता है हमारा कंट्रोल सेटअप। कंट्रोल सेटअप में हम हर चीज़ 100% श्योर रखते हैं, 100% चीज़ कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट करें, 100% परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करें। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ऑब्वियसली वन फैक्टर शुड मिसिंग, कोई ना कोई एक फैक्टर जो है हमारा मिसिंग होना चाहिए, ताकि कि हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कंपेयर कर सके कंट्रोल से। तो अब नाउ दिस दे आर सेइंग दैट दिस इज द कंट्रोल सेटअप। सनशाइन भी मिल रही है, ग्लास जार है यानी कि सनशाइन पहुंच रही है, ग्रीन वाटर प्लांट है, वाटर है, फिल्टर पेपर है, वाटर है, यानी कि ये कंट्रोल कंडीशन है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। दिस डायग्राम शोज द अदर एक्सपेरिमेंट that should be done to investigate the need of carbon dioxide in photosynthesis. अच्छा बेटा देखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का इफेक्ट चेक करना है। तो जब इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहे हो, इस वाले में तुम क्या करोगे, इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड को मिस कर दोगे। अब लाओ ऑप्शन नंबर ए देखो, सनशाइन है, यस, वाटर है, यस, ग्रीन प्लांट है, यस, यानी क्लोरोफिल भी है। क्या चीज नहीं है, दे आर एडिंग व्हाट, दे आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और ये बात याद रखो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर दे रहे हैं। Hydrogen carbonate indicator is a type of only indicator which can show the presence or absence of basically carbon dioxide. And in dark देखो sunlight का इफेक्ट नहीं देखना, हमें इफेक्ट देखना है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस वाले में क्यों नहीं किया, सेम वही हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर, आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करनी है। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, और दे आर एडिंग ऑयल लेयर, ऑयल लेयर डाल देंगे तो भी आपका हमें ट्रांसपायरेशन का इफेक्ट या कुछ इस तरह का इफेक्ट नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट दैट कंट्रोल में वी आर प्रोवाइडिंग 100% परफेक्ट कंडीशन, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जिस फैक्टर का इफेक्ट देख रहे हैं उसको मिस कर रहे हैं। अभी हमें किसका इफेक्ट, अभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट देखना है, तो इसमें हम किसको मिस कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली रिमूव कर देंगे। तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप नंबर ए है वो आपका ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज हो सकता है। क्यों, क्योंकि सनशाइन है, सब कुछ है, बट क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड कर दिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब फोटोसिंथेसिस किस में होगी, ऑब्वियसली दिस वाले में फोटोसिंथेसिस शो होगी, और इस वाले में जो दिस वन है इसमें जो है आपकी फोटोसिंथेसिस होगी, इसमें आपकी फोटोसिंथेसिस जो है वो होगी, और इस वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं। ओके, नाउ 8, a protein solution is tested using 3 different reagents। अच्छा, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो प्रोटीन को चेक कर सकता है। आयोडीन नो, बेनेडिक्ट नो, ब्रियोरेट यस। अब आयोडीन में कुछ कलर चेंज आएगा, नो, आयोडीन में कोई कलर चेंज नहीं आएगा, यानी आयोडीन जिस कलर के हैं उसी कलर के ही रहेंगे, जो कि आयोडीन में कलर होता है ब्राउन कलर, ठीक है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कोई चेंज आएगा, नो, बेनेडिक्ट भी ब्लू ही रहेगा। कलर चेंज किस में आएगा, बायोरेट सॉल्यूशन में। क्या होगा, जब प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तो कलर ब्लू से क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। सो दिस कॉम्बिनेशन ब्राउन ब्लू पर्पल इज द राइट कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्लैक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयोडीन का इतना कलर चेंज नहीं करता, दिस इज प्रोटीन नॉट अ स्टार्च।
सेम यहाँ पर रेड क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि पैरेडिक भी कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। यहाँ पे ब्लू क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ब्लू रहेगा तो इसका मतलब प्रोटीन एब्सेंट है। प्रोटीन इज देयर, कलर शुड चेंज, इट कन्वर्ट इनटू पर्पल कलर फ्रॉम ब्लू। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ च्यूइंग फूड एट द स्टार्ट ऑफ डाइजेशन। अच्छा, पहली बात तो ये ख्याल में रखना जरूरी है दैट च्यूइंग इज द फिजिकल टाइप ऑफ डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन हो रही है या आप कह सकते हो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स ओवर देयर। ठीक है, च्यूइंग। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यस। व्हाई इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, क्योंकि जब फूड आपका च्यू हो रहा है तो वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है तो सरफेस एरिया इनहेंस हो रहा है। लुब्रिकेटिंग फूड, यस, क्योंकि आपका स्लावा ऐड हो रहा है, और स्लावा क्या है, स्लावा म्यूकस है, म्यूकस में क्या होता है, वाटर होता है। मेकिंग फूड सॉल्युबल, नो, क्योंकि देखो सॉल्युबल बनाने का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी च्यूइंग इज द फिजिकल डाइजेशन नॉट द केमिकल डाइजेशन, तो सॉल्युबल नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, लुब्रिकेटिंग फूड होगा। हाँ, सलावा में मौजूद एंजाइम जो है वो करेंगे केमिकल डाइजेशन, तो फूड सॉल्युबल बनेगा। बट सिर्फ च्यूइंग से फूड सॉल्युबल नहीं बनता, सिर्फ च्यूइंग से फूड सॉल्युबल नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। Which raw correctly yields a good source of vitamin C and its deficiency symptom? Vitamin C कहाँ होता है? Vitamin C आपके फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में भी होता है और सिट्रस फ्रूट्स में भी होता है। एग योक में नहीं होता, इसमें विटामिन डी हो और तो और इसके अलावा जो है फैट्स हो। सो आपका जो है वो गुड सोर्स इसका क्या है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, व्हाट इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स? विटामिन सी नहीं हो तो क्या होता है? विटामिन सी ना हो तो एक डिजीज डेवलप हो जाती है विच इज कॉल्ड स्कर्वी। एंड व्हाट इज द सिम्टम्स फॉर स्कर्वी? ब्लीडिंग गम्स इज द आर द सिम्टम्स, एंड देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स आल्सो, bruises like symptoms, bleeding gums, anemia, but not the softening of. So this is the right option. Fresh green vegetables and bleeding gums, which called scurvy. The photomicrograph shows a part of sunflower stem. Which tissue transport water and mineral salt? Which tissue transport sucrose? Okay. Water and mineral किससे transport होगा? Xylem से transport होगा। सक्रोज किससे ट्रांसपोर्ट होगा? फ्लोएम से होगा। अब एक डायग्राम देखकर हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज फ्लोएम, व्हाट इज जाइलम? तो याद रखो कि जाइलम जो है वो डेड स्ट्रक्चर्स है, डेड हॉलो ट्यूब्स है, तो जाइलम हमेशा डार्क स्टेन होती है। अब ये देखो जाइलम जो है वो कैसे स्टेन हुई है, डार्क स्टेन हुई है। एंड फ्लोएम लिविंग जो है वो सेल्स से मिलकर बनता है, फ्लोएम टिश्यू, तो ये लाइटर स्टेन होता है। जाइलम का ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ? 2, यानी वाटर मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं आपके, सॉरी 3, 1 ऑप्शन जो आपके वाटर मिनरल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? 3 से, बिकॉज 3 इज द जाइलम एंड 2 इज द फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स हमेशा बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, और जब आप डिस्कस कर रहे हो व्हाट इज दिस इज स्टेम। स्टेम में आप रिकॉल करो कि किस तरह से होते हैं, अरेंजमेंट किस तरह से होती है आपके वेस्कुलर बंडल्स की। स्टेम में आपकी इस तरह से वेस्कुलर बंडल्स आपके अरेंज होते हैं। इनर पार्ट क्या होता है? इनर पार्ट है जिसको आई एम शोइंग ग्रीन, दीज आर बेसिकली जाइलम। और आउटर पार्ट क्या होता है? आउटर पार्ट आपका फ्लोएम है। इस डायग्राम को भी रिकॉल करके आप पता कर सकते हो कि विच इज द राइट आंसर, दैट जाइलम जो इनर साइड पर है और जो डार्कर स्टेन है that are responsible for water and minerals ions uptake, while phloem which are present on the upper side they are responsible for sucrose transfer. Option number C is the right option. The herbaceous plant growing in a nutrient solution is placed in a well-lit experimental chamber. Well-lit means you are providing enough amount of sunlight. Okay. Through which humid air is being passed slowly. Humid air आप pass कर। The diagram below shows a section through a part of plant. What is showing in this section? Root.
कैसे पता लगा? जाइलम की शेप देखकर। कैसी है जाइलम की शेप? स्टार शेप। ठीक है, सो दिस इज द रूल. The speed of the movement of the fluid in tissues P and Q are measured. The humid air is then replaced by dry air and the speed of movement of fluid change. Okay. सबसे पहले तो ये बात देख लो कि P और Q है क्या. P आपके क्या है? P आपके हैं फ्लोएम और Q क्या है आपके? जाइलम. जब ह्यूमिड एयर थी तो क्या हो रहा था? मूवमेंट हो रही थी बट स्लो हो रही होगी. क्यों? क्योंकि जब आपकी ह्यूमिड एयर होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाता है. रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाता है. अब दिस ह्यूमिड एयर इज रिप्लेस्ड बाय ड्राई एयर. ह्यूमिड एयर को किससे रिप्लेस कर दिया आपने? ड्राई एयर से रिप्लेस कर दिया. अब क्या होगा? अब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आपका बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा क्योंकि आपने ह्यूमिड एयर को रिप्लेस कर दिया है ड्राई एयर से. मूवमेंट कहाँ होगी? वाटर की मूवमेंट कहाँ ऑब्जर्व की जाएगी? जाइलम में. फ्लोएम में कुछ होगा? नो, क्योंकि फ्लोएम का काम नहीं है वाटर को मूव करना. मूवमेंट कहाँ होगी? जाइलम में होगी. जाइलम कौन से वाले हैं आपके? क्यू इज द जाइलम. ठीक है, क्यू इज द जाइलम. तो आपका ग्रेटली इंक्रीज. कौन सी मूवमेंट? अपवर्ड या डाउनवर्ड? ऑब्वियसली अपवर्ड, क्योंकि रूट से वाटर कहाँ जाता है? लीव्स तक जाता है. क्यों जाता है? बिकॉज लीव्स के पास स्टोमेटा होते हैं. क्या करते हैं स्टोमेटा? स्टोमेटा रिलीज कर देते हैं एक्सेस वाटर को आउटसाइड द प्लांट बॉडी. सो ग्रेटली इंक्रीज अपवर्ड मूवमेंट. बट in tissue P there will be the little change because they are not responsible for this rate of to increase the rate of transpiration. Okay, so option number D is the right option. The table shows the characteristics of a blood in one blood vessel in the body. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखो हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो है, प्रेशर हाई है. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किस में हाई होती है? आर्टरीज में. कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो होती है और प्रेशर भी आर्टरीज का हाई होता है. Which blood vessels contain blood with these characteristics? Aorta, yes. Why not pulmonary artery? Because pulmonary artery is the only artery which contain deoxygenated blood. तो देखो ऑक्सीजन तो हाई नहीं हो सकता था इसलिए. Why not pulmonary vein? Because pulmonary vein में प्रेशर हाई नहीं होगा क्योंकि दिस इज वेन. सेम वेना कैवा. ना वेना कैवा में ना तो आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होगी ना आपका प्रेशर हाई होगा बिकॉज इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड प्रेशर भी क्या होता है? लो होता है. सो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन कि आपकी और एरोटा जो है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो है और प्रेशर हाई है क्योंकि इसको हार्ट से ब्लड लेकर जाना है एंड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना है. दूसरी बात कि एरोटा में जो है आपके वेल्व्स भी नहीं होते तो प्रेशर शुड बी हायर. हाउ डू वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरी? पहली बात कि वेन्स और आर्टरी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वेन्स का जो वाइड है ल्यूमेन की ज़्यादा होती है कम होती है? ज़्यादा होती है. वॉल थिकनेस कम होती है ज़्यादा होती है? कम होती है. क्यों? क्योंकि जो है आपकी जो वेन्स है उनको प्रेशर क्लियर नहीं करना और इलास्टिक फाइबर वो भी लेस होते हैं, मसल्स इन द वॉल वो भी लेस होते हैं. सो विच इज़ द राइट ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन कि वाइड ऑफ द ल्यूमेन वाइडर है, वॉल थिकनेस कम है. जब अगर वॉल थिकनेस वगैरह ज़्यादा हो जाएंगी तो वाइड ऑब्वियसली कम हो जाती है. इलास्टिक फाइबर कम है, मसल्स इन वॉल वो भी लेस है. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन. The diagram shows a section through the human heart. These are semilunar valves. Okay, and this is the right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Okay, let's move further. What happens as blood is being pumped out of the heart? जब blood heart से बाहर जाएगा तो semilunar valve क्या होंगे? Open होंगे. Okay, vessel through which blood pass to the lungs. Lungs से कहाँ से जाता है? आपके राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स की तरफ. ऐसा ही होता है. सो दिस वन यहाँ पे आपका सब्यूलर वेल्व ओपन एंड वेसल थ्रू व्हिच ब्लड पास टू द लंग्स आपका ए. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन. ओके,
An experiment is set up as shown. Look at this. Tube 1, tube 2, water, equal weight of soap, pea seed, colored water, potassium hydroxide solution. In the very start, जब हम NaOH कर रहे थे, I told you that what is the role of potassium hydroxide also to absorb carbon dioxide. Okay. After a few hours, the colored water will have gone down by the same amount in both tube. Be higher in tube 1 than in tube 2. Be higher in tube 2 than in tube 1. Have gone up by the same amount in both tubes. अब देखो वो क्या रहा है कि ये आपके जो सीड्स हैं ये रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं. ये क्या कर रहे होते हैं? रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं. रेस्पिरेशन में व्हाट दे आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, but what they are releasing carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर रिलीज हो रही है तो वाटर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डाउन होना चाहिए. डाउन होना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है ना, तो ये प्रेशर अप्लाई करेगी वाटर पे. वाटर का वॉल्यूम शुड बी गोज डाउन. बट ट्यूब ए में क्या हो रहा है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा हुआ. दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं पी और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो अब यहाँ पर वाटर मूवमेंट बजाय डाउनवर्ड होने के कहाँ होना शुरू हो जाएगी? अपवर्ड. तो विच इज द राइट ऑप्शन? हैव गॉन डाउन बाय द सेम अमाउंट इन बोथ ट्यूब्स? नो. बी हायर इन ट्यूब 1 देन इन ट्यूब 2? यस. जैसे एज आई टोल्ड यू दैट ट्यूब 1 में क्या होगा? हायर, क्योंकि ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही है बट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाया जा रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम वाटर का डाउन हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. विच प्रोसेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेस्पिरेशन? देखो रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन से होता है ये कि आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है. जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है. एनर्जी कौन से प्रोसेस में चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में? ऑब्वियसली एनर्जी आपको चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए. अब देखो आयन एक्टिव अपटेक ऑफ आयन, एक्टिव नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव अपटेक. इसका मतलब इसमें आपको रेस्पिरेशन चाहिए एंड दे आर आस्किंग नॉट डिपेंड ऑन रेस्पिरेशन. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसके लिए भी आपको एटीपी एनर्जी चाहिए होती है. डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, देखो डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो जब कहा जा रहा है डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज तो इसके लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए मीन्स आपको रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं बिकॉज डिफ्यूजन इज देयर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन से मिलेगी. व्हाट हैपेंड टू द डायफ्राम व्हेन ब्रीथ इन कर रहे हो आप? ब्रीथ इन कर रहे हो मतलब इंस्पायरेशन कर रहे हो या आप कह सकते हो इनहेलेशन कर रहे हो. इसमें डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. डायफ्राम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये इस तरह से फ्लैटन इन शेप हो जाता है. इन रिलैक्स मैनर डायफ्राम इस तरह डोम शेप होता है. बट व्हेन यू आर हैविंग इंस्पायरेशन प्रोसेस डायफ्राम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है ताकि जो आपके लंग्स हैं ताकि जो आपके लंग्स हैं दे गेट इनफ स्पेस टू ब्लोन अप. तो आपका दिस व्हाट इज द राइट ऑप्शन? दिस कॉन्ट्रैक्शन मसल एक्शन क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इस तरह से ये डोम शेप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लैटेंड शेप. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. The diagram refers to control of water concentration in the blood. अच्छा, what happening here? You can start from anywhere, but we are starting from this. Like okay, water in blood rising, water blood में rise होना start हुआ. क्या हुआ? More water urine में निकलना start हो गया. More water urine में आ गया, निकल गया आपके बॉडी से, तो क्या हुआ? Water blood का falling down हो गया. वाटर ब्लड का फॉलिंग डाउन हो गया तो लेस वाटर यूरिन में लेस वाटर निकलेगा. जब यूरिन में लेस वाटर निकलेगा तो अगेन वाटर इन ब्लड राइज हो जाएगा क्योंकि जब लेस वाटर यूरिन में निकल रहा है तो ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. तो ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो वाटर इन ब्लड राइजिंग एंड अगेन इस तरह से चलता
इज दिस अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? देखो पहली बात, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पता होना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है? जो चीज़ों को कंट्रोल करता है विद इन द सर्टेन लिमिट। लेट्स सपोज कि अगर मैं कह रही हूँ, इफ आई एम सेइंग दैट इन योर बॉडी देयर इज अबाउट 4 लीटर ऑफ वाटर, ओके, 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर है आपकी बॉडी। अब अगर वाटर 6 होगा तो उसको भी अगेन इस रेंज पे लेकर जाया जाएगा, और अगर वाटर 3 लीटर होगा तो उसको भी अगेन इस रेंज पे लेकर आया जाएगा। ना ये इस रेंज से इन्हेंस होने देगा, ना ये इस रेंज से डिक्रीज होने देगा, ना इन्हेंस होने देगा। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक किसी भी तरह के चेंज को रिवर्स करता है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड, नो, क्योंकि वाटर देखो ब्लड में डिक्रीज नहीं हो रहा। वाटर ब्लड में अगर फॉल हो रहा है तो लेस यूरिन आउटपुट आपको शो हो रहा है, और ब्लड अगेन इसको रिकवर बैक किया जा रहा है। सेम इट इंक्रीज एनी चेंज, कोई भी चेंज इंक्रीज नहीं हो रहा, चेंज को बैक टुवर्ड नॉर्मल लाया जा रहा है। इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड, नो। इट रिवर्स एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड, यस, क्योंकि ये रिवर्स कर रहा है। ना ये ब्लड को राइज होने दे रहा है, ना ये ब्लड को फॉल होने दे रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। What is an excretory? What is not an excretory product of mammals? देखो excretory products क्या होगा? First of all, तो you should know about the concept of excretion का concept होना चाहिए आपको। What is excretion? Excretion is the removal of metabolic waste products। अब metabolic waste products क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनएक्सपायर्ड है, यस, आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही है, सो दिस इज एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट। अनडाइजेस्टेड फूड इन फीसेस, देखो ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं करे, बॉडी ने एनवायरनमेंट से लिए थे, इट रिमेन अनडाइजेस्टेड क्योंकि बॉडी के एग्जिस्ट थे, तो इस वजह से बॉडी इसको एक्सपेल आउट कर देगी, ये बॉडी का अपना प्रोडक्ट नहीं। सो यस, दिस इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल। यूरिया इन स्वीट, बिकॉज यूरिया प्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी में। कैसे होता है यूरिया प्रोड्यूस? प्रोटीन डिग्रेडेशन से। कहाँ होता है यूरिया प्रोड्यूस? लिवर में। कहाँ से रिलीज करवाया जाता है? या तो स्वेट के थोड़ा रिलीज होता है यूरिया, बट वो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट होती है। ज़्यादातर यूरिया भेजा जाता है कहाँ? किडनीज को। किडनीज क्या करती